নমস্কার, নিউজ 18 প্রাইমে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছে ফোগাতের 50 কেজি কুস্তির ফাইনালে ওঠেন বিনেশ। ওজন 130 কোটির অলিম্পিক্সের ফাইনালে উঠেও ছিটকে গেলেন পুষ্প। অলিম্পিক্সের ফাইনালে এবার শেষ মুহূর্তে সোনা স্বপ্ন চূড়ে শোরগোল। ওজন করা করেন আপাতত অলিম্পিক্স ডিহাইড্রেশনের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন, সারা রাত না ঘুমিয়ে ওজন কমানোর চেষ্টা করেন। আপাতত অলিম্পিক্স ভিলেজেই বিশ্রামে রয়েছেন বিনেশ ফোগাত। পরিবারের সদস্যরা কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। चीज का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया, कहीं ना कहीं आस है। देखिए वो तो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सभापति की बोलছেন। अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है। रात में उन्होंने मेहनत किया वजन कम करने के लिए, उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन का वो हुआ, वही वो एकदम फिट हैं और आराम कर रही हैं। पूरी टीम उनके साथ, पूरी डॉक्टर सब लोग अपने, हमारे वहाँ सेफ डिमिशन गगन नारंग जी हैं, PT उषा मैडम वहाँ पहुंच गई हैं। सब लोग उनको जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं सब दी जा रही हैं। স্বপ্নভঙ্গ 130 কোটির অলিম্পিক্সের ফাইনালে উঠেও ছিটকে গেলেন কুস্তিগির বিনেশ ফোগাত। 50 কেজি বিভাগে মাত্র 100 গ্রাম ওজন বেশি থাকায় ডিসকোয়ালিফাই হন। পাশে থাকার বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, তুমি চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন, তুমি ভারতের গর্ব, প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে প্রেরণা, আরো মজবুত হয়ে ফিরে এসো। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, পাশে থাকার বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। PT উষাকে ফোন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিনেশ ফোগাতের ডিসকোয়ালিফাই নিয়ে তিনি কথা বলেছেন, ফোন করেছেন আইওএর প্রেসিডেন্ট PT উষাকে। ভারতের সামনে আর কি বিকল্প আছে তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ। ফোগাতকে ফাইনালে যোগ দেওয়াতে বিকল্প পথ খোঁজার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। যদি বিকল্প না থাকলে IOA কে তীব্র প্রতিবাদ জানানোরও নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং ফোগাতকে সব রকম সাহায্যের নির্দেশ IOA। ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সহ সভাপতি অসিত সাহার সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম এই বিষয়ে। তিনি কি জানাচ্ছেন শোনাবো আপনাদের। একটা মেয়ে, সে তো তার সবকিছু দিয়ে লড়াই করেছে, ফাইনালে পৌঁছেওছে। অলিম্পিকের রেসলিং বলে কথা নয়, প্রতিটা খেলার রুলস খুব স্ট্রং। পারপাসটা খুব ছোট ছিল। 100 গ্রামের জন্য একটা মেয়ে গোল্ড মেডেলের হাতছানি। সমগ্র ভারতবাসী মানে উদ্বেগে এই হয়ে আছে যে গোল্ড মেডেলটা বিনেশ পাবে। এমন সমস্ত রেসলারদের হারিয়ে, জাপানকে যে হারিয়েছে, জাপান ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য লাস্ট অলিম্পিক। এখানে সমগ্র দেশবাসী শুধু না, আমি বলবো সব থেকে বেশি ক্ষতি হলো কুস্তি ফেডারেশনের। মাত্র 100 গ্রামের স্বপ্নভঙ্গ 130 কোটি ভারতবাসীর সোনার স্বপ্ন দেখিয়ে এই পদক অধরা বিনেশ ফোগাতে। সব মহলে এখন একটাই প্রশ্ন, দায় কার? গতকালই আমরা জানি যে সেমিফাইনালে চোখ ধাঁধানো পারফরমেন্স ছিল, তারপর এক রাতে কিভাবে ওজন বাড়লো সেই প্রশ্ন উঠছে সকলের মনেই। 100 গ্রাম ওজন কমানো সম্ভব বলছেন স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা। ওজন বাড়ার বিষয়টি অ্যাথলেটেরা নজর না থাকলেও সাপোর্ট স্টাফরা কি করছিলেন সেই প্রশ্নটাই উঠছে। প্রশ্ন তুলছেন স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নিশীথ রঞ্জন চৌধুরী। এটা খুবই দুঃখজনক। সোনার পদক জয়ের মুখে এসে একজন ভারতীয় অ্যাথলেটিককে তা মাত্র 100 গ্রাম ওজন বেশি হওয়ার জন্য তাকে ছিটকে যেতে হলো। এখন এখানে একটা ভাবার বিষয় আছে, এই 100 গ্রাম ব্যাপারটা কি ম্যানেজ করা যেত না? যেত। সে হয়তো ওভার কনফিডেন্ট ছিল যে সে ওয়েটে অ্যালাউ হয়ে যাবে, কিন্তু একজন প্লেয়ার যদি ওভার কনফিডেন্ট হয়, তার পাশাপাশি তার যে সাপোর্ট স্টাফ, সেখানে স্পোর্টস সায়েন্সের যারা থাকবেন, তার যে ডায়েটিশিয়ান, তারা ঠিকভাবে এই ব্যাপারগুলো দেখেছিলেন কিনা সেটা কিন্তু একটা ভাববার বিষয় আছে।
শেষ মুহূর্তে চুরমার সোনার স্বপ্ন, অলিম্পিক্সের ফাইনালে পৌঁছেও বাদ বিনেশ ফোগাত। বিনেশ আজ সংসদেও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সরব বিরোধীরা। শেষ মুহূর্তে চুরমার সোনার স্বপ্ন, অলিম্পিক্সের ফাইনালে পৌঁছেও বাদ গেলেন বিনেশ ফোগাত, আর সেই আঁচ পড়ল সংসদেও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সরব বিরোধীরা। इतने बड़े मोमेंट में जब हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल आ रहा है, वहाँ पे ये चीज़ हुई है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके पीछे का क्या रीज़न है, उसको जांचना चाहिए। और रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई एक खिलाड़ी खेलता है, खेल के पहले वो जो शुरुआत करता है उस हिसाब से जो भी मेजरमेंट होते हैं, और उसके बाद सडनली मैच के बाद वो चेंज हो जाते हैं, तो उसके पीछे की जो भी कहानी है उसको पता करनी चाहिए। बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के, और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस। और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं, और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है। अजीब सा वो है कि सिर्फ 100 ग्राम के लिए एक किसी एथलीट को खेलने नहीं दिया जाता है। अगर खेलने का मौका मिल जाता तो विनेश के लिए ये बेस्ट चांस होता। খুব দুর্ভাগ্য, পার্লামেন্টে আমি চিৎকার করেছি ইচ্ছা করে, কিসের জন্য তার বডি ভারী হয়ে গেছে। হোয়াট ইজ দিস? ভীষণ অসম্মান, এটা পলিটিক্যাল ব্যাপার হচ্ছে কিছু, আমার মনে হয় লজ্জা পাই আমি। বিনেশ ফোগাটের আজ সংসদেও আমরা দেখলাম ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করছেন বিরোধীরা। অন্যদিকে লোকসভায় বিবৃতি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রীর, মনসুখ মান্ডব্যর বিবৃতির সময় তুমুল হট্টগোল। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। আমরা শুনলাম একদিকে তুমুল হট্টগোল যখন, তখন অন্যদিকে এই হট্টগোলের মধ্যেই সব রকম ভাবেই বিনেশের পাশে থাকার আশ্বাস কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রীর। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वेन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। विनेश फोगाटेर पाশে দাঁড়িয়ে ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেও দাবি মান্ডব্যর। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है।
স্বপ্নভঙ্গ দেশবাসীর স্বপ্নভঙ্গ বিনেশ ফোগাতের। বাড়িতে গিয়ে ফোগাত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। কোচ থেকে সাপোর্ট স্টাফ সকলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ভগবন্ত মানের। ये क्या समझते हैं? ये हम छोटे छोटे गांव से उठकर लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाए ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या पॉलिटिक्स में या कहाँ भी। ये चाहते ही नहीं है। ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के तो बाल ही थे, फिर तो किसकी गलती रही होगी? ये हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहां गए हुए हैं वो किस काम के लिए गए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियां करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया?